તારીખ 12/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 472 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23। सत्पुरुष की वाणी स्पष्ट रूप से लिखी गई हो तो भी उसका परमार्थ सत्पुरुष का सत्संग जिसे आज्ञानिक रूप से नहीं हुआ हो उसको समझाना समझाना उनको जरा पालन करके करेगा। तात्पर्य यह है कि सत्संग में बुद्धिमता से कोई बात परमार्थ की समझ में आ जाती है, सूक्ष्म विशेष को कारण से समझ में आ जाती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो सत्पुरुष का संग विनय से अज्ञानित होकर के करता है उसको उसकी बात समझ में आ जाती है, परमात्मा समझ में आ जाती है। स्पष्ट लिखी हो तो भी समझ में नहीं आया। इसका क्या कारण? बुद्धि तो है, बुद्धि है, फिर भी पारमार्थिक प्रयोजन पर लक्ष्य जाना, ध्यान जाना, इसके लिए योग्यता चाहिए। और ऐसी योग्यता सत्संग में आने वाले को किसी को होती है, किसी को नहीं होती है, बराबर। सभी को नहीं होती है, बराबर। किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। किसी को नहीं होती है उसका पता ऐसा है उसका प्रयोजन तो और जगह होने से उसका दृष्टिकोण वहां काम करता है तो इधर नहीं काम करता है, बराबर। इसे प्रयोजन दो तरह का होता है, एक आत्मकल्याण रूप मोक्ष का और एक सांसारिक। इसको छोड़ो तो सब सांसारिक है। एक प्रयोजन को छोड़ने से सभी प्रयोजन संसार के खाते में जाता है। तो जिसका ये प्रयोजन हुआ तो उस विषय जितनी पारमार्थिक बातें हैं उनको समझ में आएगी और वो अज्ञान से दूर रहेगा होगा। जिसको प्रयोजन ही अलग है वहां उसका बुद्धि, उसका लक्ष्य वहीं बराबर काम करेगा और वो अज्ञान के रूप से रहेगा। कहीं न कहीं अपनी मनमानी करने लग जाएगा। इसलिए उनको स्पष्ट बताया हो तो भी उनको समझ में नहीं आता कि मेरे काम की चीज बताएगी, ऐसा समझ में। और वो बात उसको चाहती नहीं, आत्मलक्ष्य वाले को चाहती है, इसको चाहती है। ये मौन ज्ञानी ना हृदय में से क्या ज्ञानी में कसे तो मुमुक्षु होगा। जो मुमुक्षु है એને જ્ઞાનીની વાણી સ્પષ્ટપણે લખેલી એને વાંચવામાં આવે તો પણ એનો પરમાર્થ ન સમજાય। એનો વર્મ જે છે તો એને સમજાય નહીં, કારણ કે જ્ઞાનીના હૃદયમાં વર્મમાં શું પણ અજ્ઞાનથી પણ સત્સંગ પૈસા એને સમજાય અને
આજ્ઞાકિતપણે જેને સત્સંગ ઉપાડશો નથી એને સમજાય. પાણી તો વાણું છે ને સ્પષ્ટતા તો સ્પષ્ટતા છે. આજ્ઞાકિતપણે સત્સંગ ઉપાડશો છે એને તે સમજાય છે, અને આજ્ઞાકિતપણે સત્સંગ નથી ઉપાડશો એને નથી. એટલે ભાઈ તો તફાવત બે વચ્ચેનો લેવો છે. મુમુક્ષુની યોગ્યતાનો તફાવત લેવો છે. કોઈ બી દર્શન પરીક્ષામાં આવ્યો હોય અને પ્રત્યક્ષ યોગમાં પણ હોય અને ત્યારે સત્પુરુષનું માર્ગદર્શન પણ મળતું હોય અને પછી યોગ છૂટી જાય, પ્રત્યક્ષ યોગમાં કામ ન કરી શકે, ન થાય, પછી ફરીથી પાછું વિદ્વાન માટે પ્રત્યક્ષ યોગ જોઈએ તો પછી એ બધા કામ કરી દે. એનો આધાર પ્રત્યક્ષ યોગમાં કેટલું ગ્રહણ કર્યું છે. પ્રત્યક્ષ યોગમાં ગ્રહણ કર્યું હોય પારમાર્થિક તો પુરુષાર્થ પાછળથી ઉતરેલું કામ થાય. કારણ કે પછી તો બે થતી છે. એક તો ગ્રહણ કેટલું કર્યું છે કે નથી કર્યું, બીજો એનો પુરુષાર્થ કેટલો ચાલે છે ના એનો પુરુષાર્થ બે કામ કર્યું. પ્રત્યક્ષ યોગમાં સુગમતા વિશેષ રહે છે. સુગમતા ન જ થાય એવું કાંઈ નથી, કેમ કે પ્રત્યક્ષ યોગ મળ્યો છે. પ્રત્યક્ષ યોગે જીવ્યું છે, ગ્રહણ કર્યું છે, એનું કામ ચાલવાનું. પ્રત્યક્ષ યોગ છે ને એ તો જ્યાં અંદરમાં પોતાનું સુધ નથી આવતી એની હિંટ મળવા પૂરતો એને નિમિત્ત પછી કાર્ય તો સ્વયંથી થાય છે. એકદમ કેમ કે કોઈ સત્પુરુષ કોઈ મુમુક્ષુની સમક્ષ 24 કલાક તો બેસતા નથી, સંભવ પણ નથી, સંભવ પણ નથી. ઉદય તો બધાના જુદા જુદા તો પછી કામ કરે એને કારણે અટકેલું તો નિયમ નથી. પછી એનું પરોક્ષપણું કેટલા અંતરમાં છે એના ડિસ્ટન્સ સાથે સંબંધ નથી કે ભાઈ 50 ફૂટ દૂર છે, 50 માઇલ દૂર છે, 500 માઇલ દૂર છે, એની સાથે એની સાથે સંબંધ અંદરમાં જે કામ કરવું છે એના માટેનું જે માર્ગદર્શન છે એને મીઠ મેળવવા પૂરતું પ્રત્યક્ષ યોગ નૈતિક સંબંધ છે. આમ તો અંદરમાં પોતાનું જ કરવાનું. ગ્રહણ કેટલી તીવ્રતાપૂર્વક કર્યું છે એના પણ વધારે ડિપેન્ડ. તો એનો બાપ કેવી રીતે નીકળે કે ભાઈ આજે ગ્રહણ તો શું છે કે કોઈને તો તરત જ કરંટ લાગે છે, કોઈને કોઈ વિશેષ અંદરનો અવરોધ કોઈ હોય, પોતાના પરિણામો પ્રતિબંધ હોય, એ હટ્યા પછી એની વાત જે ઝીલાવી છે એનો કરંટ ચાલુ થાય. બધી વખત એક સાથે સ્થિતિ નથી હોતી યોગ્યતાની. યોગ્યતા સમય સમયની યોગ્યતા છે. જીવના પરિણામનું પણ સમય સમયની યોગ્યતા છે. તો જયારે માર્ગદર્શન પ્રત્યક્ષમાં મળે છે ત્યારે કોઈ એવા પ્રતિબંધક ભાવોને લઈને તરત જ ચાલુ નથી. પણ યોગ્યતાવશ જે પકડાનું હોય, ગ્રહણ થયો હોય, સ્વીકાર થયો હોય અને એનો પ્રયાસ ચાલુ થયો તો પ્રતિબંધક ભાવ દૂર થયો પછી
विशेषपण तीव्रता है। तो वो पहला पकड़वा આવી જાય ને કે આ મારે પ્રતિબંધક કારણ આપી મળે છે એ અવલોકનનો વિષય છે. કોઈ સૌના અવલોકનનો વિષય એ તો ત્યાં પકડાવે છે અવરોધ અહીંયા મને અવરોધ છે અવલોકન અંતરખોજ, અંતરવલોકન અને અંતરપુરુષાર્થ આ બધું એક સાથે ચાલવું જોઈએ. પછી કામ ન થાય એવું કાંઈ નથી. દર્શન કરીશું થોડુંક વિશેષ તીવ્રતા, કેમ કે અવરોધક પ્રતિબંધક ભાવોને બાળવાનું એક જ સાધન છે. એ સિવાય પૂર્વમાં કરેલા પ્રતિબંધક ભાવરૂપ યોગ્યતા એનું નિવારણ બીજી રીતે શક્ય નથી. જ્ઞાની પ્રતિક્રમણ કરે છે, જ્ઞાની આલોચના કરે છે અને જ્ઞાની પછાણા કરે છે. ત્રણ પ્રકાર શાના કહેવાય? પૂર્વે કરેલા ભાવોનું પ્રતિક્રમણ, પછી એ પ્રતિક્રમણ પશ્ચાતાપરૂપ હોય છે. એ પ્રતિક્રમણ પરિસરરૂપ, પરિણામોને દર્શન પરિસરરૂપ હોય છે. અને વર્તમાનનું તો અવલોકન આલોચના છે, ચાલતા થવાનું ભાવ માટે પ્રવૃત્તિતારૂપ પછાણ છે. દોષ ટાળવાના તો ત્રણ પ્રકાર છે, પ્રસિદ્ધ છે. बात वो चली उसमें विस्तार में भी हमारे जीवन में तो कई प्रकार के विरुद्ध परिणाम से किया, जो हमारे आत्म कल्याण से विरुद्ध हैं, ऐसे परिणाम से सब भाव तो किए हैं. तो ऐसे भाव करने से हमारी कुछ अयोग्यता भी बन चुकी है. और इस अयोग्यता के वर्तमान में हमें बोध मिलने पर हमारा आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, तो क्या करें? ये प्रश्न चलता है. इसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए जो दर्शन परिषदा अपना पश्चाताप का जो भी प्रकार आता है, वो इनके लिए उनको योग्यता को टालने के लिए ये एक ही साधन है. जैसे वर्तमान में आलोचना, भविष्य में पश्चाताप, तो भूतकाल के लिए प्रतिक्रमण इसको बोलते हैं. पश्चाताप भी बोलते हैं, प्रतिक्रमण भी बोलते हैं. या अपने वर्तमान में काम नहीं होता है तो इसका खेद जिसको कहते हैं, तो खेद रूप भी होता है, जिसको दर्शन परिषद, ज्ञान परिषद कहते हैं. ऐसे प्रकार के परिणाम होते हैं. ખેદ થાય છે એનો પરિસર, ખેદ થાય છે એનો विज्ञान परिषद में, दर्शन परिषद में पत्रार्थ में मुमुक्षुની ભૂમિકામાં આ એક પ્રકારમાંથી પસાર થાય છે. પછી જ્ઞાન દશા वो तो आप लोगों को पता है भूतकाल में जो परिणाम हो गए हैं उसकी स्मृति भी नहीं हो सकती है, नहीं होती भी है. लेकिन वर्तमान में यथार्थ निमित्त मिल गया, यथार्थ बोध मिल गया, यथार्थ सब बात वर्तमान में यथार्थ है. तो हमारा काम क्या है? तो हमारी योग्यता नहीं, योग्यता में तो अब तो हम ग्रहण करने के लिए तैयार हुए, फिर क्यों नहीं हमारा काम होता है? सवाल भी पैदा होता है. तो कुछ न कुछ अयोग्यता मौजूद है, कुछ न कुछ रूप में हमारी अयोग्यता मौजूद है, इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है. ये बात तो पक्के होगी, हमको कोई
शंका का स्थान नहीं रहेगा, निश्चिंत बात है। अब वो कैसे मुझे ये सवाल होता है, तो उसके लिए जिसको काम नहीं होता है उसको उसका खुद होगा ही होगा। जब परिणाम की स्मृति हो तो पश्चाताप हो, लेकिन परिणाम की स्मृति नहीं हो तो क्या हो, तो खेद होगा। उसको जो खेद होगा वो उसी को परीक्षा कहते हैं, अज्ञान परीक्षा, दर्शन परीक्षा। जो अज्ञान मिटता नहीं है और दर्शन मिटता नहीं है, इसके लिए उसको परीक्षा करना। ऐसी भूमिका में हमेशा मुमुक्षु जीव तो गुजरता है, तब उनकी विशुद्धि होती है। विशुद्धि होने से वो आगे बढ़ने के लिए उसका ज्ञान और बुद्धि दोनों को काम करने लगता है। वो काम करने लगता है। इसको इस वक्त प्रत्येक सत्पुरुष चाहिए तो वो काम चले, ऐसा नहीं। जब वो बन जाएगी अयोग्यता, तो वो ग्रहण किया है उसका बला बनता है। वो बनने आने देती थी, वो आने लगे बोलो ये बात होती है। तो प्रत्येक तो आगे बढ़ने के लिए जो सूझ में आती है, इस सूझ के लिए इस सूझ के लिए उनको जो मार्गदर्शन नहीं आती है, प्रत्यक्ष नहीं बनता है, वो परोक्ष नहीं बन सकता। क्योंकि वो बात ऐसे सूक्ष्म विषय होता है, अनुभव के साथ को अनुभव में से अपना प्रश्न निकलता है। ये प्रश्न कहाँ से निकलते हैं? तो अपने वर्तमान अनुभव में से। तो वो जो प्रश्न निकला वो अपने आवश्यकता वाला उत्तर खींच के ले आएगा। प्रश्न तो क्या है, हमारी आवश्यकता यह है, इसका नाम प्रश्न है। हमारी तो यह आवश्यकता है, तो इसके सामने पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो जरूरी है उसका ख्याल करना, उसको क्या खिलखिल हो जाता है कि जो मेरा अंतःकरण शुद्ध है, तो शुद्धांतकरण से मुझे आत्मकल्याण करना है। और आत्मकल्याण करने के लिए मुझे पूर्ति सामग्री भी मिल चुकी है। अब मेरा आत्मकल्याण क्यों नहीं होगा? तो वहां टकराव, जो टकराव है वो वहां होती है। उसके लिए क्या होता है, जो निरुपायता खुद हो जाता है। तो क्या ऐसा प्रतिबंधक मेरे प्रतिबंधक योग्यता है, काम होगा ऐसा। जैसे एक बच्चा को पेट में दर्द हो रहा है, अब वो एक साल का बच्चा कोई बता सकता है कि मुझे पेट में वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो बात नहीं है। वो कैसे उसकी अभिव्यक्ति होती है? तो दर्द को मारा वो रोने लगता है, दूसरे को पता चलता है उसको कुछ नहीं रहा, कई बात करो, ऐसी बात होती है कि वो दर्द है, काम नहीं हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। मैं तो दर्द भी वहां है और इलाज भी वहां होता है, बात से कुछ करना होता है। जो दर्शन परेशान है वो इसकी अयोग्यता को बताता है। अब आगे से अनुसंधान करते हैं, क्योंकि वो गारस के विषय में लिखा था ना, गारस के विषय में लिखा था तो स्पष्ट लिखा हो तो भी किसको समझ में आए? तो जो अज्ञान के दृष्टि से समझ रहा हो उसको, और उस प्रकार से वह वांचने वाले को स्पष्ट जानने का कभी भी कारण होता है। स्पष्ट लिखा है तो पढ़ने वाले को
कारण होता है जानने का, जिसने अज्ञानित रूप से उपासना की हो उसको। यद्यपि हमने तो अति स्पष्ट लिखा नहीं था, हमने तो बहुत स्पष्ट नहीं लिखा था, अभी तो एक पंक्ति में दो पंक्ति में ही बात दी थी आकर्षण करने के लिए कि बीज ज्ञान है कोई सुधारस है ऐसा करके। तो भी उनको ऐसा कुछ संभव होता है, परंतु हम तो ऐसे अनुमान करते हैं कि अति स्पष्ट लिखा हो तो भी बहुत करके समझ नहीं आता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक रूप से जिसको सत्संग की उपासना नहीं की है उसको तो समझ में नहीं आता है या वो विपरीत समझ लगता है और फिर उसको और विकसित खुदा को उसमें चल जाएगा, फिर उसको विकसित उत्पन्न होकर के सन्मार्ग की प्राप्ति में भावना होने का संभव होता है। इस पत्ते में मैंने पोस्ट कार्ड में हमें इच्छापूर्वक स्पष्ट लिखा था, स्पष्ट मैंने सुधारस मुख के विषय व्यवस्था ऐसा स्पष्ट लिखा था। सहज स्वभाव से भी न अनुमानित हो ऐसा बहुत करके परमार्थ के विषय में लिखा नहीं जाता अथवा बोला नहीं जाता कि जो अपरमार्थ रूप परिणाम को प्राप्त हो जाए। ये हमारी स्वयं की योग्यता के विषय में हमने लिखा है कि परमार्थ के विषय में जो कुछ भी लिखा जाता है या हमारे से बोला जाता है उसका सहज स्वभाव, उसकी सहज पर्याय ऐसी है कि किसी को अपरमार्थ रूप यानी नुकसान हो जाए ऐसा परिणाम नहीं होगा, ऐसा निमित्त इसमें है ही, ऐसा नहीं होगा किसी। दूसरा हमारा आशय योग ज्ञान के विषय में लिखने का विशेष रूप से अत्र लिख रहे हैं। विज्ञान के विषय में जो हमारा आशय है उसको खोल करके हम बता रहे हैं। चार भेद उसका दिया है। एक, जो ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ऐसा अपना आत्मा, अपना स्वरूप कोई अपूर्व लक्षण से, गुण से और वेदन से अनुभव किया है, ऐसा वो ज्ञानी है कि जिसने स्वरूप का वेदन किया है लक्षण से और स्वभाव से, और वही परिणाम जिसका आत्मा का है वो विराजमान है। ऐसे ज्ञानी पुरुष ने यदि वह सुधारस संबंधी ज्ञान दिया हो तो उसका परिणाम अगले को परमार्थ स्वरूप है। चार भेद लेते हैं, परमार्थ स्वरूप, व्यवहार परमार्थ स्वरूप, परमार्थ व्यवहार स्वरूप और व्यवहार स्वरूप, ऐसे चार भेद लेते हैं। निमित्त और उपादान को साथ में बात करेंगे, सूक्ष्म विषय है। फिर से तो पहले तो जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष की परिभाषा क्या है? ज्ञानी पुरुष क्या है? कि जिसने अपना आत्मस्वरूप को अपूर्व लक्षण से, अपूर्व गुण से और अपूर्व अनुभव से, वेदन से अनुभव किया और इस परिणाम में वो विराजमान, स्थिति में वो विराजमान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष ने ये सुधारस संबंधी यानी विज्ञान संबंधी दूसरे योग्य मुमुक्षु को ज्ञान दिया हो तो उसका फल, परिणाम में नहीं है, उसका फल परमार्थ स्वरूप है, उसका अवश्य कल्याण हो ही जाएगा।
वो बात निष्फल जाने वाली नहीं है। क्यों? तो ज्ञान देने वाला भी सही है, ज्ञान लेने वाला भी यथार्थ पात्रता में सही है। इसलिए वो उसका फल है वो परमात्मा। इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो उसका विपरिणाम हो जाए, अन्यथा परिणाम हो जाए, ऐसा होने वाला क्योंकि ग्रहण करने वाला बराबर ग्रहण करता है, कहने वाला अपने अनुभव की बात खोल करके कहता है, तो फिर उसको उसमें कोई दूसरा अन्यथा परिणाम आने की गुंजाइश वहां है ही नहीं। दूसरा, जो पुरुष ये सुधारस को ही आत्मा जानता है, उससे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो ये व्यवहार परमात्मा स्वरूप है। तो इस भूमिका में आया हो तो वहां तो वही भूमिका ही में एकत्व है, तो वही उसका आत्मा हो गया। अभी तो हिम्मत तो हुआ नहीं है, और वो ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उनको, उससे ज्ञान की प्राप्ति दूसरे को हुई हो, तो ये व्यवहार परमात्मा स्वरूप है। तब तक दूसरे को लागू हुए नहीं भी हो गए, ऐसी बात है। क्योंकि उसका पूर्ण इस बात को बताने का उतना अधिकार नहीं है। वो सुधारस को ही आत्मा माना है। आत्मा तो अलग चीज है, हाँ, एक विज्ञान है। तो ये योग्यता जो है ज्ञान दशा वाली योग्यता नहीं है। यह ज्ञान कदापि परमात्म स्वरूप ऐसा ज्ञानी ने न दिया हो, परंतु यह ज्ञानी पुरुष के सन्मार्ग सम्मुख, ज्ञानी पुरुष का सन्मार्ग सम्मुख आकर्षित हो, ऐसा जो जीव को उपदेश किया हो और जीव को ये रुचा हो, उसकी रुचि में आया हो, तो उसका ज्ञान ये परमार्थ व्यवहार स्वरूप है। परमार्थ व्यवहार स्वरूप है कि उसने ग्रहण कर दिया है। परमार्थ स्वरूप ऐसा ज्ञानी में वो दिया नहीं हो, लेकिन इस विषय की परिभाषा या ग्रहण किया विषय को खोल करके, जैसे समय साल में परिशिष्ट है अमृतचंद्राचार्य जी का विषय को खुला है, लक्षण वाला विज्ञान का विषय तो खुला है, ऐसा कोई भी ग्रंथ में हो। और ऐसा उपदेश ज्ञानी पुरुष के सन्मार्ग सम्मुख आकर्षित कर रहे हैं। कोई बात को है, कोई सन्मार्ग थी इसमें, ऐसा जीव को उपदेश किया हो और वो रुचिवान को अच्छा लगा, रुचि हुई हो, तो उसका यह ज्ञान परमार्थ व्यवहार, तो उसको आगे जाकर के इसमें आगे बढ़ने का की संभावना, क्योंकि रुचा है इसमें, तो रुचि है तो अच्छी चीज है। परमार्थ विषय को रुचि हुई है तो वो आत्मा की योग्यता को कुछ न कुछ रूप में लाभकारक, रुचि का विषय, ज्ञान का विषय नहीं है, रुचि का विषय नहीं, ऐसी योग्यता वाले जीव को लिया। और उसके सिवा शास्त्रादि के जानने वाला कोई विद्वान हो, पंडित हो, जो शास्त्र अनुकूल जानता हो, विरुद्ध बात नहीं करता, ऐसा शास्त्र में कहा, ऐसा बताता। इसके सिवा शास्त्रादि को जानने वाला सामान्य प्रकार से मार्गानुसारी जैसी उपदेश बात करता है और वो श्रद्धा में आती है, क्या ठीक लगती है, तो बात तो अविरोध है, बात में विरोध नहीं है, तो यह व्यवहार स्वरूप है, यह व्यवहार है वो व्यवहार स्वरूप है, इसका कोई फल होता नहीं। क्यों कि जो
कहने वाला है वही अनजान है और लेने वाला भी अनजान है। कोई भौतिक स्तर पर उसको सम्मत होता है कि बात ठीक है, लेकिन इसका कोई फल नहीं आता है। व्यवहार રહેવાની क्या व्यवहार ભાઈ એનો અર્થ એ થઈ ગયો લગભગ કોઈને વિરોધ ન લાગે તો માફી માંગુ અત્યારે જે પંડિતો અમને આપે છે અદાણી છે એટલું વ્યવહારિક હોય છે અમે દબાવવા લાગુ છું અમને બહુ બધું વ્યવહાર વ્યવહાર આગળ ના હોય એવું સમજવું ધ્યાન ગાવ પાડી ગયા ઠીક છે। અત્યારે તો પંડિતોમાં આ વિજ્ઞાનનો વિષય ચાલતો આ તો પર્ટિક્યુલર શિક્ષા છે। અત્યારે એ વિષય એટલો જાણવામાં વિચારવામાં કષ્ટ નહીં હોય ऐसा विज्ञान करीब करीब तो इस विषय को पंडित लोग स्पर्श करते ही नहीं है। तो इस विषय में पढ़ते ही नहीं, इस विषय को स्पर्श करते नहीं, इसको करता भी कारण सुनते हैं शास्त्र में कोई कारण से अन्य को जो कायदा वो अपने को इतना चिंता करने की क्या जो परिस्थिति है वो समझ आ जाए वो ऐसा क्यों करता है वो बात नहीं आपने को क्या का सवाल है जो जिसकी रुचि होती है उस विषय में ज्यादा चलता है। એનો અર્થ એમ છે કે વ્યવહાર વ્યવહારો ત્યાં આગળ લાગુ નથી પડતો। જે આ ચોથો પ્રકાર કીધો એ બી અત્યારે જે આપણું જે વિષય ચાલે છે વિષય ચાલતો નથી, વિજ્ઞાનનો વિષય ચાલતો વ્યવહાર વ્યવહારે લાગુ નથી પડતો। અને વ્યવહાર વ્યવહાર બાબત નથી કર્યા વ્યવહારનો વ્યવહાર ખીચીને કર્યા વ્યવહાર વ્યવહારનો વ્યવહાર કારણ કે उसके सिवा शास्त्रादि को जानने वाला, इस विषय का जानने वाला सामान्य प्रकार से मार्गानुसारी भी जैसे उपदेश बात करें। मार्गानुसारी किसको कहते हैं कि जिसको सिद्धांत के अंदर से बैठता है। जैसे करता हूँ तो टूटे करो पीछे महाभजन हो हूँ करूँ ये जो ज्ञान का એવી વાત બરાબર હોય, વાત બરાબર ન લાગે એવું ન હોય, વાત બરાબર લાગે તેમ છતાં એનું જે પરિણામ છે એનો વિશ્વાસ કરતા એટલે વિશ્વાસ આવે કે વાત ઠીક છે, બરાબર વાત છે, તો પણ એનું જે ફળ છે તે વાત એને છે કોઈ આત્મલાભ થાય એવું બનતું નથી, સામાન્ય વાત થઈ ગઈ। मार्गानुसारी को कहते हैं कभी डिसाइड होता था मार्गानुसारी भी ऐसा होता है तो कोई गर्भित योग्यता उनकी ऐसी होती है कि मार्ग प्राप्ति में उनको बहुत दूरी नहीं है, फिर भी बाह्य परिस्थिति देखो तो मार्ग प्राप्ति में आ जाए ऐसे उनको उठाने की। जैसे कबीर है, उनके पद्य को बहुत से अपने वहीं से काम किया ऐसे ये अखापगढ़ की बात नमनारद से लिया है कि पूछो जीव में पूछो नाथ, तो जेने जीव को छे परमात्मा छो अंदर में तो ज परमात्मा छो। હવે એની મતમાં એ વાત જ નથી, મેં તો બીજો પરમાત્મા છું, ઓલા કે તું જીવ ને તું જ પરમાત્મા છો અને એમાં બધું સમાઈ ગયું એમ કહીને मैंने पूरी बात कर दिया, तुम परमात्मा हो ऐसा कहते तो मैंने तो पूरी बात कर दिया, अभी कुछ कहने का बाकी नहीं रहता। इसकी जो उसको ज्ञानी पुरुष समझ लेता है कि ये कोई मार्गानुसारी पुरुष हो सकता है, वरना ऐसी बात उनके संप्रदाय में नहीं है तो लाया कहां से।
आत्मा में से वो बात आई है। उनके पास सन्मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एकदम जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो स्पष्टता होनी चाहिए, उस स्पष्टता उनको बढ़ चुकी है और उनको उस स्पष्टता देने वाले का योग भी नहीं वर्तमान में है। फिर भी कुछ बात अनोखी आती है, अनूठी बात आती है उससे आत्मा में से, उसकी योग्यता को ज्ञानी पुरुष पकड़ते हैं। मार्गानुसारी इसको कोई ऐसा ही सजीवन मूर्ति ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा, अपना काम उसको मार्ग बहुत दूर नहीं मार्ग समझता है। वर्तमान में तो अन्य मत में होता है वो ऐसी स्थिति है। ज्ञानी मार्गान का विषय जो सूक्ष्म ज्ञान की गहराई का विषय है, ऊपर ऊपर की बातों का ये विषय। ज्ञानी के ज्ञान उनके भावों से उनकी बहुत गर्भित योग्यता को पकड़ लेता है, गर्भित योग्यता को पकड़ता है, क्योंकि वर्तमान में इतनी स्थिति नहीं दिखने यहाँ से वो बोल सकते हैं कि मार्गानुसार का ज्ञान इस विषय में और सूक्ष्म भी ऐसे मार्गानुसारी जीवों के वचन पढ़ते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि मार्गानुसारी ऐसा विद्यमान नहीं होने पर भी, सामने नहीं होने पर भी बंधन योग्य मार्गानुसारी बंधन योग्य है। बंधन का समाधान नहीं रहता, बंधन का क्या कारण है? हमारे यहाँ शिष्टाचार बंधन का समाधान नहीं रहता। बंधन तो धर्म को, जहाँ धर्म है वहाँ ही बंधन करना। धर्म नहीं है हमारा बंधन करने से क्या करेंगे? वो प्रगट नहीं है वहाँ तो बंधन करने का साथ। प्रगट तो धर्म नहीं है, मार्गानुसारी में प्रगट धर्म तो प्रगट नहीं हुआ है, आगे होगा वो तो उसकी बात है, अभी तो नहीं है। व्यवहार तो वर्तमान में होता है। नजीक में आगे मार्ग में नजीक में आगे એને માર્ગાનુસારી કીધું. આવડે વાત કરી એને માર્ગાનુસારી કીધું. આવડે જે વાત કરી એને માર્ગાનુસારી કીધું. जैसी उपदेश बात है એટલે માર્ગાનુસારી मार्गानुसारी જેવી કોઈ જૈન સિદ્ધાંતની વાત આત્મામાંથી કરે છે, એને શાસ્ત્ર આદિમાંથી કરે છે, વિપરીત વાત નથી કરતા એ, છતાં પણ એ વ્યવહાર કરે એનું કોઈ ખાસ ફળ નથી. ગરજી દેવતામાં આગલા ભાવમાં એમણે કંઈક સાંભળ્યું અને પાછી આવી ગયું. કોઈ કારણ તો એવું હોઈ શકે, કોઈ કારણ તો એવું હોઈ શકે, રૂચી ગયું હોય એવી વિશિષ્ટ વાત હોય, એ ખૂબ રૂચી ગઈ હોય તો એના સંસ્કાર વશ વાત નીકળી જાય, એવા સંસ્કાર सुगमपने से, सुगम रूप से समझने योग्य ऐसे 4 प्रकार होता है। एक परमार्थ स्वरूप, यह निकट मोक्ष का उपाय है। जो परमार्थ स्वरूप है उसे सन्मार्ग में बहुत समीप में आ गया है, उसे निकट मोक्ष का उपाय है। परमार्थ व्यवहार रूप, ये अनंतर परंपर संबंधे मोक्ष का उपाय है। वो निकट नहीं है लेकिन उसको परंपरा में थोड़ी देर लग करके, लेकिन वो लाइन सूखी नजर आ रही। व्यवहार परमार्थ स्वरूप ये बहुत काल से कोई प्रकार भी मोक्ष का साधन का कारणभूत होने का उपाय है, साधन का कारणभूत। ऐसे मोक्ष के साधन के कारण बन जाता है। तो तीसरा प्रकार भी है।
सूक्ष्म कार्य ये जरा साधन कारण जरा सूक्ष्म रुचि परमार्थिक उपदेश की रुचि हुई है, तो उस रुचि के वशात उनके आगे जाकर के मोक्ष का साधन का कारण हो तो वो बात बन सकती है। मोक्ष का कोई साधन है, इसका कारण हो तो वो बात बन सकती है। तो व्यवहार स्वरूप का फल आत्म प्रत्यय ही, आत्मा में उसका कुछ लाभ होता तो तीन थोड़ा डिस्टेंस है। पहले वाला तो बहुत निकट है, दूसरे वाला थोड़ा भी है, तीसरे वाले को कभी लाभ होने के चांस साधन बन सकता है, कारण बन सकता है, कुछ नहीं। चौथे का कोई जगह नहीं। आटला मटे सोबत मैंने लिखा है जी। तो साइला में वो विज्ञान वाली बात बहुत चर्चित थी। विज्ञान मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए। एक विज्ञानी है तो हमने विज्ञान दिया है, विज्ञानी ने विज्ञान दिया है। हाँ, ऐसे बहुत चलती है। उन्होंने 4 भेद बताया, तो 4 प्रकार है, तुम समझ लेना। बराबर, यानी अनुसंधान हो 4 स्पष्टीकरण दिया है। यह बात अभी भी आगे भी कोई प्रसंग के साथ विशेष रूप से लिखेंगे। ठीक, 751 वाले से 751 तो खास नहीं आई है बात। 751 में तो बहुत संक्षेप में आया है, इतना विशेष रूप से तो कहीं ग्रंथ में नहीं मिलता है। वहां कोई संक्षेप है, 4 शब्द लिखा है। परमार्थ के स्पष्ट अनुभवान से प्रतीत विज्ञान का स्वरूप नहीं लिखा, बहुत संक्षेप है। वो बात आगे कोई प्रसंग विशेष विशेष रूप से लिखेंगे, इसलिए विशेष रूप से समझ में आएगी। परंतु इतनी संक्षेपता से विशेष समझ में नहीं आए तो उलझन में पड़ना नहीं। कंक्लूड है, उनको विशेष रूप से बात समझ में नहीं आया तो करने की जन्म पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारा योग है, आपको आगे जाकर के स्पष्ट कर देंगे। लक्षण से, गुण से और वेदन से जिसने आत्मस्वरूप जाना है उसे, उसको ध्यान का यह एक उपाय है कि जिससे आत्म प्रदेश की स्थिरता होती है और परिणाम भी स्थिर होता है। योग भी स्थिर होता है, परिणाम भी स्थिर होता है। ध्यान रखना किसको? जिसको आत्मज्ञान है उसको। आत्मज्ञान मैंने क्या? लक्षण से, गुण से और विघ्न से आत्मस्वरूप जाना। लक्षण से, उपयोग लक्षण से सदा सनातन स्फुरित ऐसा जी ऐसा योग भी जरा समझा करो, हृदयમાં જો સમજ્યા કરો એ સમય માટે બેઠ થાય છે જ્યારે बैठे होते हैं योग समझ जाते हैं समय में। ये जो योग का विपरीत परिणाम है तो अनंतानुबंधी में जो योगाश्रम होता है वो स्वामी भाव के बाद कितना योगाश्रम
उस प्रकार का नहीं, भगवान से फर्क पड़ जाता है। एकत्व गुण तो छूट जाए सब। योग गुण का विपर्याय वो है जो कंपन का विपर्याय है, आत्म प्रवेश के कंपन का जो विपर्याय है, उसमें भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतव, स्वामी का सूत्र है। बंध हेतु को या आश्रव को, अधिकार आश्रव का चलता है। आश्रव अधिकार का पहला सूत्र है मोक्ष शास्त्र का। तो आश्रव कौन है कि जो बंध का हेतु है? तो आश्रव के 5 भेद लिए, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग। इसमें मिथ्यात्व गया जिसका, तो 4 रहा, चारों की जाति में फर्क है। मिथ्यात्व सहित भी वो 4 थे और मिथ्यात्व रहित भी वो 4 रहे, उसमें फर्क पड़ता है चारों में। ठीक है, એટલે કેવી છે? એટલે યોગના કંપનમાં ફરક પડી જાય. બહુ સૂક્ષ્મ વિષય છે, પણ ફરક પડી જાય. એનું કારણ છે કે જે સ્વરૂપ સ્થિરતા આવી અનુભવમાં અને ઉપયોગ જે સ્થિર થયો, થંભી ગયો, એ ધ્યાનસ્થ અવસ્થા છે. સ્વરૂપાચરણ ધ્યાનસ્થ ચારિત્ર ગુણમાં પર્યાય છે. તો ચારિત્ર શુદ્ધિ પણ થઈ, પ્રધાનની તો પૂરી શુદ્ધિ થઈ, જ્ઞાન શુદ્ધિ, ચારિત્ર શુદ્ધિ. શેના આશ્રય છે? કે અયોગી કેવળ સ્વભાવ છે એના આશ્રય છે. અસંગ કેવળ અસંગ સ્વભાવ છે એના આશ્રય છે. તો યોગનો જે વિકાર હતો એ વિકારનો ફરક પડે. યોગાશ્રમમાં ફરક પડે. એવો યોગાશ્રમ મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં થાય, એવો યોગાશ્રમ મિથ્યાત્વ ગયા પછી એવો ને એવો ન થાય. એની ચપતા ચપતા ઊંચું આમ ખબર ન પડે કોઈને, બહારથી કાંઈ ખબર ન પડે, કેમ કે 13મા ગુણસ્થાન સુધી યોગાશ્રમ છે, 14 જાય છે યોગાશ્રમ. એ ચૌદે જાય છે એ વખતે ખૂબ કંપન થઈને પછી જાય છે. શાસ્ત્રમાં કોઈ વાત હોય તો આપણા જાણવામાં નથી. પણ હવે શું કોઈને બાકી રહ્યું છે, પૂર્વ નિબંધન થયેલું, આશ્રમિત કરવું કેટલું બાકી રહ્યું છે, એમાં બધાને એક સરખો પ્રકાર નથી. જેમ કે કોઈ કેવળી સમુદ્ઘાત કરે છે, સમુદ્ઘાત બધા કેવળને થતો નથી. कोई केवल ज्ञानी ऐसा है कि उसके पूर्व निबंधन किए हुए कर्म ऐसा है कि जिनकी स्थिति बहुत है और आयु उतना है ही नहीं, और आगे कोई नया भव है नहीं, नया भव का बदला पड़ा नहीं, नया आयु बनता नहीं उसको, तो उसको अगले भाव में भोगे, तो उसको तो नया बंधन ही नहीं होता. ऐसे सब प्रकार के जो विभाव है वो विकास क्या है उसके तो नाश भी है. पूर्व जो रहे हैं उसका क्या करें, उसकी स्थिति लंबी है. મુદ્દા વખતે કંપન વિશેષતા तो हाँ पर बताया तो એવું થતું નથી. ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, किसी को हो किसी को नहीं भी हो. सभी के भूतकाल एक से नहीं है, सभी के भविष्य फिक्स हो गया, लेकिन सभी का भूतकाल तो एक से है नहीं. ये अपने को भी क्या है, मोक्ष सब मोक्ष है मान लीजिए, तो उसमें भी सबके भूतकाल तो एक से है नहीं, तो सबके पूर्वकर्म भी एक से नहीं है, तो सबके वर्तमान योग भी एक से नहीं है, हर एक के अलग अलग है. तो ज्ञानी जो होते हैं वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं ये जीव कहाँ खड़ा है और उसको कैसे उठाना है. तो दूसरे का काम नहीं है, क्योंकि ज्ञानी इतने ऊपर बैठे हैं. जैसे कि आप श्रवण बेलगोला जैसे छोटी सी टेकरी है, उस पर बैठे हैं, तो नीचे चढ़ने वाले बहुत से लोग हैं. तो आप सबको जानते हैं कि ये 5 पगथिया चढ़ा है, वो 50 पगथिया पर ऊपर खड़ा है, वो 200 पगथिया चढ़ गया है, वो तो बहुत समय पा गया है. ऊपर बैठे बैठे वाला सब नीचे को नीचे वाले को देख लेता है कि कौन कितना आगे आया है, कौन कितना खड़ा है, कौन कितना चलता है या नहीं चलता है. ऐसे ज्ञानी को ऊपर बैठे हैं
तो नीचे वाले की योग्यता को और समझ सकते हैं कि कौन कितनी योग्यता में है और उसको क्या जरूरत है अभी। तो व्यक्तिगत रूप से सभी को एक उपदेश हो नहीं देते हैं, समष्टिगत में तो दूसरा इलाज नहीं है, व्याख्या नहीं कि आगे जिसको जितना लेना हो ले, नहीं लेना हो तो नहीं ले, या उल्टा पढ़ना हो तो उल्टा भी पढ़े, क्योंकि उसमें तो दूसरा उपाय नहीं है कि एक एक को संबोधन करें 1 घंटे में। इसमें व्यक्तिगत परिचय जो बोलता है, जैसे कृपालुदेव का उदय ऐसा है, एक एक का व्यक्तिगत परिचय था, तो हर एक को अलग अलग बात कहेंगे। ये तो हमने गुरुदेव का भी देखा है, एक ही प्रश्न का एक को अलग उत्तर दे, दूसरे को अलग उत्तर दे, प्रश्न एक ही हो, दोनों को उत्तर नहीं मिले। उसका कारण क्या है? तो पूछने वाले को समझते हैं कि उसको अभी क्या की जरूरत, क्या बोलना चाहिए। ऐसा યોગના કંપન વખતે એ તો અંતરના ખબર પડી કે બાહ્ય ચીજ કોઈ ન હોય. कंपन यानी क्या वाइब्रेशन? कंपन मैंने परिस्पंदन हिलना फिजिकली इनसाइड, तो फिर आप फिजिकली इनसाइड कंपन वो कैसे होता है? वो एक प्रकार का विभाव है, योग गुण का शुद्ध परिणमन नहीं होने से, जैसे हमारी आत्मा है तो मन से, वचन से और काया से संबंधित जुड़ी हुई है। योग में ये जो योग टू ज्वाइन, यूज धातु है, तो संयोग जो है, जैसे ये हमारे एक्यूप्रेशर चलता है तो दबाते हैं नस को, तो आप ज्ञान को तो स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन हमको दर्द क्यों होता है दबाने से। काय योग है, हमारी आत्मा को काय योग है, जिस परिणाम से हमने जो हम इस काया के साथ संयोग में रहे हैं, उस परिणाम की अयोग्यता को हमने जहां तक नहीं मिटाई है वहां तक ये सब बना रहता है। मनुष्य तत्व से काया योग में संयोग में रहना, संयोग में अच्छी तरह से योग होना। साथ में हम यहाँ बैठे तो हमारा मन वचन काया इधर है, तो हम इधर जाएंगे तो मन वचन काया इधर साथ में ही है, तो संयोग स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइप का एक खास प्रकार का है संयोग। ऐसा नहीं है कि मकान जैसा संयोग है, मकान इधर रह जाएगा हम इधर चले जाएगा, ऐसा संयोग नहीं। मकान का भी संयोग है, देह का भी संयोग है, लेकिन इसको योग कहते हैं, मन वचन काय योग। तो खास प्रकार का उसका जो संयोग है, उसमें ऐसा क्यों हुआ कि हमारे बाह्य परिणाम से ऐसा हुआ है, तो अंतर्मुख परिणाम से उसकी शुद्धि होती है। ये अशुद्धि का फल है, अशुद्धि का रिजल्ट है, ओरिएंटेड पोजीशन अशुद्धि की है। हमारे अशुद्ध परिणाम जो हुए, इसमें एक परिस्थिति बन चुकी है हमारी मन वचन काया के योग की। तो जितनी जितनी शुद्धि होती जाएगी उतना उतना फर्क उसमें पड़ता जाएगा, ऐसा है। એટલે વર્તમાનમાં પણ યોગનું કંપન ચાલુ જ છે, ચાલુ જ છે, કે મન વચન કાયાની સાથે જોડાયેલા છે યોગના કંપન ચાલુ છે। હવે પ્રશ્ન એમ આવે છે કે મિથ્યાત્વ પ્રમાદ કશાય નહીં, એ તો કર્મબંધના કારણ છે, પણ યોગને કર્મબંધનું કેવી રીતે? योग પણ આશ્રવનું કારણ है, કેવી રીતે? योग भी आश्रव का कारण है। ये योगाश्रव कहते हैं, 13वें गुणस्थान में होता है। वहाँ मिथ्यात्व नहीं, कई विषय नहीं, प्रमाद नहीं, कषाय नहीं, लेकिन 13वें गुणस्थान में आश्रव कुछ का है, योगाश्रव है। ये तो स्वतंत्र થાય છે યોગના ફરી આત્માના સ્પંદન તો स्वतंत्र था। स्वतंत्र क्या होता है कि कुछ विभाव से ये बात हो गई है। ऐसी बात जैसे किसी को कंपभाव होता है, फूल दृष्टांत ले, कंपभाव नाम का भाव होता है, उसके हाथ को ऐसे हिलते ही रहेंगे, उसकी इच्छा काम में नहीं आएगी। उसको तो इच्छा हुआ है कि मेरा कंपन नहीं हो, मेरा कंपन नहीं हो, ऐसी इसकी इच्छा है, फिर भी वो कंपते ही रहेंगे। ऐसे ही ये जो कंपन है वो विभाव से पैदा हुआ है, तो जहां तक विभाव की शुद्धि नहीं होगी वहां से वो कंपन चालू रहेगा। એ તો સમજી શકાય। અહીંયા તો 13મી ગુણસ્થાન જો વિભાવ છે નહીં,
हाँ, विभाव नहीं है, लेकिन विभाव की योगाश्रम की जितनी असर रह गई है, इसलिए वहां कहते हैं कि शुद्धि तो हुई है लेकिन अनुजीवी गुणों की हुई है। जो शुद्धि, पूर्ण शुद्धि हुई है, वो अनुजीवी गुणों की हुई है, प्रतिजीवी गुणों के लिए हुई है। तो प्रतिजीवी गुणों में जो विभाव रहा, ये भी एक प्रकार की अशुद्धि है, जिसको असिद्धत्व भी हम कह सकते हैं। जैसे विश्व में जीव के दो ही विभाग हम करें तो दो विभाग कैसे हो सकते हैं? 2 क्लास ओनली, 2 वर्ग करें तो, एक संसारी और एक सिद्ध, 2 ही विभाग है। तो जो सिद्ध के सिवा के जीव है वो सब संसारी है, वो 14वें गुण स्थान तक संसारी जीव है। सिद्धालय में गए हुए सिद्ध है, बाकी सब संसारी है, ऐसी बात है। ठीक है, અહીંયા એમ વિચાર કરીએ કે મનનો પવન તૂટી ગયો છે તેમને ગુણ થાય. વચન તો એમ પવન તો એમ ગણીએ તો પવન પરથી કાયાનો પવન રહ્યો. વચનનો પવન થોડોક છે જે દિવેશની છૂટે એમાં પરિણામ કોઈ વિભાવિક પરિણામ નથી. અનુજીવી ગુણો શુદ્ધ છે. તમારો જે પ્રશ્ન છે ને એ અનુજીવી ગુણોનો છે. અનુજીવી ગુણો શુદ્ધ પરિણમી ગયા છે. પ્રતિજીવી ગુણો હજી શુદ્ધ નથી થયા, માટે એનું વિપરિણામ પણ ચાલુ છે અને તે યોગાસન રૂપે કામ કરી રહ્યું છે. तो कंपन से शुद्ध हो जाता है, कंपन से शुद्धि आ जाती है. नहीं, कंपन से शुद्धि आती नहीं है, कंपन से नया आश्रय होता है. नया आश्रय, विभाव से विभाव ही होगा, स्वभाव से विभाव कर लेगा, विभाव से तो विभाव ही होगा. ये तो विभाव है. कंपन है वो कोई जीव का स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव है. जीव के प्रवेश का कंपन है, इसका स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है. तो विभाव से तो आश्रय होगा, विभाव से शुद्धि नहीं है. ભાઈ તારતમ્યતામાં ચોથા ગુણસ્થાને અનુધર્મમાં જો યોગ વધુ થઈ જાય, પણ બીજામાં થોડું ઘણું તારતમ્યમાં ફરક પડી ગયો. क्वालिटी फेर છે. क्वांटिटी तो समझમાં નહીં આવે, કેમ કે કેવો જ્ઞાનનો વિષય છે. ક્વોલિટી ફેર છે. આપણે બધા કાની સમજવાના બધામાં થોડો ફરક પડે. परम कृपालु श्री सदगुरु देवनो जय. समूर्ति भगवती मातनो जय.